Hello students, today's lesson is about a poem which has been taken from 12th class English textbook Flamingo, and the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. Elementary means basic or we can say primary. Basic school, primary school means प्राथमिक पाठशाला, और स्लम कहते हैं झुग्गी झोपड़ी बस्ती. झुग्गी झोपड़ी जो बस्तियां होती हैं, they are called slum. It is an area in a city where living conditions are very bad and where poor people live. They lack basic amenities. And this poem is composed by a famous poet, Stephen Spender. In this poem, the poet represents the very pathetic and miserable condition of the children who live in slum area. He reflects the harsh realities of the life of these children. He says that life of these children can be changed. Life of these children can be improved. In this poem, he also focuses on the wide gap between the rich and the poor people, haves and have-nots. And he requests and appeals to the people who hold the high position in the society and the people who are representative of the society. Please look into the matter of these children carefully. Please do something for these children so that their life can be improved. Provide them some opportunities so that they can contribute in the development and the progress of the country and be the good citizen of the country rather becoming criminals, जिससे कि ये बच्चे भी एक अच्छा जीवन जी सके. Let's move forward and see what is more about in this lesson. Let's know something about the life of the poet. Poet Stephen Spender. He was born in 1909 and he died in 1995. As you can see, he was an English poet, essayist, critic and journalist. वह एक English poet थे, वह एक निबंधकार थे, एक critic थे, समालोचक थे और एक पत्रकार भी थे. He took keen interest in politics, declaring himself a socialist and a pacifist. He was very much into the politics. He was very much interested in politics. उनको राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट था और अपने आप को वो एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी और एक पैसिफिस्ट कहते हैं शांतिवादी कहा करते थे. His famous books are poems of dedication, the creative elements, word within word. ये उनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं. एंड सोशल इनजस्टिस, एम्पैथी फॉर डाउनट्रोडन. ये बुक्स हैं जिसमें कि ये सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय और एम्पैथी कहते हैं सहानुभूति को. फॉर डाउनट्रोडन कहते हैं पद दलित लोग, लोअर स्टेटा, पीपल हु बिलोंग टू द लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी, दे आर कॉल्ड द डाउनट्रोडन. जो पद दलित लोग होते हैं समाज में, जिनको निम्न जाति का माना जाता है, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हमें करना चाहिए और हमें सामाजिक अन्याय का विरोध करना चाहिए. ये सारी जो थीम्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर रिलेटेड उनकी जो रचनाएं थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी. तो आइए बढ़ते हैं आगे. लेट्स मूव ऑन. जस्ट टू अंडरस्टैंड द पोएम क्लियरली, इस कविता को और अच्छे से समझने के लिए हियर वी हैव गिवन सम पिक्चर्स. यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और ये कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं. What do you expect a class to be like? आप एक कक्षा से क्या उम्मीद करते हैं? एक कक्षा किस तरह की होनी चाहिए, कैसी दिखाई देनी चाहिए? Try to think some of the words looking at these pictures that come to your mind while looking at these pictures. When you saw these pictures, जब आपने इन चित्रों को देखा तो क्या शब्द थे जो आपके दिमाग में आए? Here we have divided these pictures into two categories. Pictures in column A and pictures in column B. What is the difference between the pictures? Let's find out. In column A, the pictures are very bright and full of colors, vibrant. Pictures are there. क्लास A में जो चित्र हमें दिखाई देता है उसमें कक्षा हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, जिसमें बैठने के लिए पूरी तरह से फर्नीचर की व्यवस्था है, एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, खिड़कियां जो है बहुत ज्यादा खुली हुई है. रूम इज वेरी स्पेशियस एंड एयरी. जो कमरा है, जो क्लासरूम है, वो बहुत ज्यादा, उसमें काफी जगह है और हवादार है. चिल्ड्रन लुक वेरी एंथुजियास्टिक एंड वेरी एनर्जेटिक. दे आर ईगर टू लर्न. बच्चे बहुत ज्यादा
उत्साहित दिखाई देते हैं, ऊर्जावान दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं. दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज, पढ़ाई में उनको बहुत इंटरेस्ट है. एंड दे आर हेल्दी एंड हैप्पी, और इन सब के बावजूद वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और स्वस्थ दिखाई देते हैं. सो द पिक्चर्स इन कॉलम ए रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ. जो कॉलम ए में जो चित्र है वो जीवन की सकारात्मकता को दिखाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत क्लास दिखाते हैं, जैसा कि एक आदर्श क्लास को होना चाहिए. While on the contrary, we see the pictures in column B, the classes are very small, cramped, gloomy, dull. Classes जो है छोटी दिखाई देती हैं, सकरी है, बहुत ज्यादा डार्कनेस वहां पे दिखाई देता है, डल दिखाई दे रही है. इट इज नॉट फुल ऑफ लाइफ, लाइवली नहीं दिखाई देती है. स्टूडेंट्स आर इनएक्टिव एंड दे लुक वेरी लेथार्जिक, वेरी टायर्ड एंड डिप्रेस्ड. बच्चे जो हैं बहुत डल दिखाई देते हैं, थके हुए दिखाई देते हैं. दे लुक माल नॉरिश्ड और अंडर नॉरिश्ड. वो लोग कुपोषण का शिकार दिखाई देते हैं. दे डोंट लुक हेल्दी एंड हैप्पी. बच्चे जो है वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लगता है दे आर नॉट ईगर टू लर्न, दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग. वो कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं. सो अब दोनों तरह की पिक्चर का अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में बहुत ही ज्यादा विरोधाभास हमें दिखाई देता है. कॉलम बी के जो चित्र हैं वो बिलोंग करते हैं हमारे उन क्लासेस से जो क्लासेस झुग्गी झोपड़ी बस्ती में स्थित है. आफ्टर लुकिंग ऑल दीज पिक्चर्स इट इज वेरी मच क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लासेस. चित्रों को देखने के बाद दोनों क्लासेस में क्या अंतर है ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है. पोएम डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. सोशल इनजस्टिस माने सामाजिक अन्याय, क्लास इनइक्वालिटीज माने वर्ग असमानता. सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता की थीम इस पूरे पोएम में हमको दिखाई देती है. और इस जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका जो स्ट्रगल होता है, संघर्ष जो होता है जीवन में जीने का, उसके बारे में बताया गया है. दो वर्ड है, एक अमीरों का संसार है और एक गरीबों का संसार है. जब तक इस गैप को हम अब्रिज, इस गैप को हम छोटा नहीं करते हैं, इस गैप को हम नहीं भरते हैं, यानी अमीरी गरीबी के बीच की दूरी जब तक नहीं मिटेगी तब तक सही मायने में किसी प्रकार का डेवलपमेंट, किसी प्रकार की प्रोग्रेस जो है वो संसार में नहीं हो सकती है. एंड सेकंड थीम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी. शिक्षा का क्या महत्व है हमारे सोसाइटी में. राइट टू एजुकेशन, यानी सभी को जो है शिक्षा समान रूप से प्रोवाइड की जानी चाहिए. एंड आफ्टर दैट पोएट अपील्स टू द एजुकेटेड एंड रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी. और अंत में हम देखते हैं पोएम के कि जो कवि है वो सोसाइटी के जो पुअर, जो एजुकेटेड, जो शिक्षित और अमीर लोग हैं, उनसे अपील करते हैं कि इन बच्चों की क्लासरूम कंडीशंस को आप सुधारें और उनका ब्राइट फ्यूचर बनाएं और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं. लेट्स मूव to the another slide, and here the poem starts, an elementary school classroom in a slum. This is the first stanza of the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. In this stanza, poet describes the very pathetic and miserable conditions of the children who are sitting in the class which is situated in the slum area. तो क्लास में बैठे हुए बच्चों के जो चेहरे हैं, इनके बच्चों के चेहरे जो हैं वो गस्टी वेव से बहुत दूर है. गस्टी कहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग वेव, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग वेव्स जो होती हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग वेव्स. समुद्र में जो उड़ती हुई, गिरती हुई जो लहरें होती हैं, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म से भरी हुई है और वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत खूबसूरत है. ऊपर उठती हुई, नीचे गिरती हुई जो शक्तिशाली लहरें हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं और बहुत ही ऊर्जावान होती हैं, बहुत एक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ दिखाई देती हैं. दे आर द सिंबल ऑफ लाइफ. लेकिन ये जो बच्चे हैं, इनके जो चेहरे हैं वो इन गस्टी वेव से बहुत दूर है, यानी दोनों में दूर दूर तक का कोई भी नाता नहीं है. दोनों में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट है, बहुत ज्यादा विरोधाभास है. It means that the children who are sitting in these classes, they are very dull, they are very gloomy, their faces are very lifeless, it seems that they are anemic. उनके चेहरे में किसी प्रकार की कोई चमक दिखाई नहीं देती है. Like rootless weeds,
द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, पैलर कहते हैं पीला चेहरा, पेल फेस, पेल फेस मीन्स दे आर एनेमिक, द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन आर पेल, दे मस्ट बी एनेमिक, उनमें खून की कमी होगी, दे मस्ट बी माल नॉरिश्ड, कुपोषण के शिकार होंगे बच्चे, जिस कारण उनका चेहरा जो है वो पीला दिखाई देता है। और इनके दे लुक लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस कहते हैं अपरूटेड, उखाड़े गए, जड़ विहीन जो वीड्स होते हैं, वीड माने होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी आवश्यकता नहीं है। जब किसान खेतों में फसल उगाता है तो कुछ पेड़ पौधे जो है वो बिना उगाए ही साथ साथ उग जाते हैं और वो उगी हुई जो मुख्य फसल है उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो इसलिए वो निकाल करके उनको बाहर फेंक देता है। तो इन द सेम वे दीज चिल्ड्रन लुक लाइक द वीड्स, ये बच्चे जो हैं जमीन से उखाड़ी गई खरपतवार की तरह, अनवांटेड प्लांट्स की तरह, इन बच्चों के जो बाल हैं वो उनके चेहरे पर फैले हुए हैं, उनके पीले चेहरे पर, जो पीला उनका चेहरा है, जो माल नॉरिश्ड उनका चेहरा है, उनके चेहरे पर फैले हुए हैं। दे आर अनकैम्प्ड हेयर, दे आर डिसऑर्डरली डन, मीन्स देयर हेयर इज नॉट प्रॉपरली डन, बाल उनके ठीक से बने नहीं है, बिखरे हुए बाल हैं। ये जो रूटलेस वीड्स है, इसके दो मीनिंग हम ले सकते हैं, एक तो उनके बालों के लिए है कि वो बेतरतीब उनके चेहरे पर फैले हुए हैं, और दूसरा कि दे आर रूटलेस, दे आर नेग्लेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, समाज उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, वो समाज की अवहेलना के शिकार है, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, इसीलिए वो रूटलेस वीड्स की तरह, फेंकी गई, उखाड़ कर फेंकी गई खरपतवार की तरह मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, अब इस स्टैंजा में जो है लेखक जो कवि है वो चार बच्चों के बारे में स्पेशली बताता है। He highlights the four students sitting in the classroom. एक बड़े कद की लड़की है, एक लंबे कद की लड़की है, who is sitting in the classroom keeping her head down, जिसका सिर जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। वेट कहते हैं भार, भार से नीचे झुका हुआ है। इसके कई अर्थ हम निकाल सकते हैं इस सेंटेंस के। द टॉल गर्ल हु इज सिटिंग इन द क्लासरूम मस्ट बी डिप्रेस्ड, जो लंबी कद की लड़की क्लासरूम में बैठी है हो सकता है वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो, निराश हो। मस्ट बी एग्जॉस्टेड, बहुत थकी हुई हो। मस्ट बी इल, हो सकता है वो बीमार हो। और ये भी हो सकता है कि घर की बड़ी लड़की हो, उसको छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी हो, उसको माँ बाप के जाने के बाद अपने भाई बहनों को देखना पड़ता होगा, तो परिवार की जिम्मेदारी उसके सिर पे होगी, जिसके कारण जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, उसके भार के कारण उसका सिर जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो थोड़ा सा दुखी दिखाई देती है, डिप्रेस दिखाई देती है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, एक और लड़का क्लास में बैठा है जो कि who is very lean and thin like a paper, paper एक बहुत ही कागज यानी कि बहुत ही दुबला पतला, and very light, who is very light weighted means again he wants to say that they don't get proper food and they are malnourished people, students who are sitting in the classroom। अधिकतर बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार है, उनको खाने को अच्छे से मिलता नहीं है, इसी कारण वो बच्चा बहुत ज्यादा दुबला पतला है, बहुत लाइट वेटेड है, और उसकी आंखें जो है वो रैट की तरह दिखाई देती है। Whenever we see a rat, we find that its eyes keep on searching for something, हमेशा उसकी आंखें कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ भोजन की तलाश में रहती है। इन द सेम वे ऐसा लगता है कि बच्चे के को भी भूख लगी है, उसको भी प्रॉपर खाना, पूरी तरह से खाना नहीं मिला है, इसलिए उसकी आंखों में भूख दिखाई देती है। हंगर ग्लीम इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख दिखाई देती है, इसलिए उसकी तुलना, उसकी आंखों की जो कंपेयर किया गया है वो रैट की आईज से किया गया है। The stunted unlucky heir of twisted bones, reciting a father's learned disease, his lesson from his desk. There is another student sitting in the classroom who is stunted. The stunted unlucky, who is the unlucky heir? Heir कहते हैं उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स जो फादर होते हैं, फादर के बाद जो उनका बेटा होता है वो उनका सक्सेसर होता है, उनका डिसेंडेंट होता है, उनका उत्तराधिकारी होता है। तो वो कैसा उत्तराधिकारी है? वो अनलकी है, वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट चाइल्ड है, दुर्भाग्यशाली है, वो लकी नहीं है, वो भाग्यशाली नहीं है। देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर वेरी लकी हेयर ऑफ देयर पेरेंट्स, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के बहुत ही भाग्यशाली उत्तराधिकारी होते हैं, जिनको विरासत में बहुत धन दौलत मिली होती है,
बड़ा गाड़ियां हैं, बंगला है, कार है, ऐसी पूरी सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध रहती हैं। लेकिन ये जो बच्चा है उसको अपने हु इज नॉट डेवलप्ड फुली, स्टंटेड है, उस ग्रोथ इज ब्लॉक, उसकी जो बढ़त है, जो उसका बढ़ना था, जो उसका डेवलपमेंट होना था, वो प्रॉपरली नहीं हुआ है। और उसको अपने पिता से विरासत में ही इनहेरिट्स ट्विस्टेड बोन्स, ही इनहेरिट्स द डिजीज ऑफ बोन्स, रूमेटाइज, यानी उसको अपने पिता से क्रुक्ड बोन्स मिली है, उसकी हड्डियां जो है वो क्रुक्ड है, मुड़ी हुई है। तो अपने पिता की जो चलती हुई बीमारी है वो उसको विरासत में मिली है, इसीलिए उसको अनलकी कहा गया है। और वो जो है at the back of the dim class is very dim, there is not proper light in the classroom, class is very gloomy, अंधकार है, अंधेरा है क्लास में, और he is sitting at the back of the class, वो क्लास के पीछे की तरफ बैठा है, और वहीं से वो अपने डेस्क से he is reciting, he is narrating his father's journal, he is not narrating his lessons properly। ऐसा लगता है कि वो अपने पिता की बीमारियां, अपने पिता की हड्डियों की जो बीमारियां जो उसको विरासत में मिली हुई है उसे सुना रहा है, बजाय कि अपने लेसन्स को सुनाने के। One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. अब there is also a little boy sitting at the back of the class. क्लास के पीछे में एक और बच्चा है who is unnoticed, जिसपे ज्यादा किसी का ध्यान नहीं गया है। तो ये बच्चा जो 4 बच्चों का वर्णन किया है, 3 बच्चे जो हैं वो इस बच्चे से एकदम डिफरेंट है। ये बच्चा उन 3 बच्चों से, पहले वाले तीनों बच्चों से ही इज वेरी मच डिफरेंट, बहुत ज्यादा अलग है। ही इज वेरी स्वीट एंड यंग, वो सबसे छोटी उम्र का भी है, इज वेरी क्यूट चाइल्ड, बहुत प्यारा सा बच्चा है, और उसकी तरफ ज्यादा किसी का ध्यान नहीं गया है। एंड हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, ये जो एक बच्चा है, एकमात्र बच्चा, हु इज ड्रीमिंग समथिंग, जो कुछ सपना देख रहा है। तो ड्रीम, सपना देखने का मतलब क्या है कि वो सपना देख रहा है स्क्विरल्स गेम का, कि वन डे ही विल प्ले लाइक अ स्क्विरल, एक दिन वो भी स्क्विरल की तरह ही खेलेगा। वन डे ही विल गो आउटसाइड इन द नेचर एंड इन ट्री रूम, ट्री रूम कहते हैं जो हाइडिंग प्लेस, जो पेड़ों में जो गिलहरी का छुपने की जो जगह होती है, जो उनका घर होता है, वहां से वो बार बार निकलती है, अंदर जाती है, फिर बाहर निकलती है, फिर बाहर आती है, इस तरह से वो खेलती भी रहती है। तो ऐसी एक गिलहरी का सपना वो देख रहा है, यानी ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्ले लाइक अ स्क्वेरल समडे, वो भी एक स्क्वेरल की तरह किसी दिन घूमना चाहता है, खेलना चाहता है। ही ऑल्सो वॉन्ट टू होप एंड जम्प इन अ ट्री रूम, वो भी प्रकृति के बीच में कूदना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है नेचर की ब्यूटी को। तो एक और बच्चा, अदर देन दिस माने इस क्लास के अलावा, यानी ये जो देन दिस माने ये जो ग्लूमी क्लास है, जो डिम क्लास है, इसके अलावा वो प्रकृति में जाना चाहता है। तो ये बच्चा जो है वो शुरू के बताए हुए तीनों बच्चों से एकदम अलग है। ये बच्चा जो है, इट रिफ्लेक्ट्स, इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, इट रिफ्लेक्ट्स द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ द लाइफ। ये जो बच्चा फ्यूचर की जो कल्पना कर रहा है, ड्रीम देख रहा है, सपना देख रहा है, माने ये कुछ पॉजिटिविटी दिखा रहा है, इसमें कुछ आशा दिखाई देती, कुछ होप दिखाई देती है जीवन के प्रति। बाकी जितने बच्चे हैं वो जीवन के प्रति ऐसा लगता है बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं। Let's move to the next stanza, stanza second. On sour cream walls, donations Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding on cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map awarding the word its word. अब now in this second stanza, the poet describes the condition of the classroom. ये क्लासरूम की जो वॉल्स हैं, दे आर पेंटेड विद क्रीम कलर। क्लासरूम की वॉल्स जो है वो क्रीम कलर से पेंट की गई हैं, बट द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर नॉट वेल मेंटेन। लेकिन क्लासरूम की जो कक्षाएं हैं वो अच्छे से मेंटेन नहीं की गई है। मस्ट बी दे हैव नॉट बीन पेंटेड और वाइट वॉश फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन वेरी नेग्लेक्टेड, वो बहुत समय से उन पे पेंट नहीं किया गया होगा। दैट्स व्हाई द क्लासरूम वॉल्स हैव बिकम सार। सार का मतलब होता है खट्टा, कड़वा। तो यहाँ पे क्रीम जो होती है, क्रीम जो होती है अगर बहुत दिन रखी जाएगी तो उसका कलर जो होता है वो बिगड़ जाता है, एंड इट स्मेल्स वेरी बैड,
और इसकी खुशबू बहुत गंदी हो जाती है एंड इट ऑल्सो टेस्ट वेरी बैड, इसका टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है। इन द सेम वे जो वॉल्स है क्लास की वो वेल मेंटेन नहीं है, उनकी रख रखाव ठीक से नहीं किया गया है, जिसके कारण कक्षाओं का जो क्रीम कलर है वो गंदा हो गया है, इट हैज बिकम डर्टी फिल्दी, इसलिए वो अनप्लेजेंट दिखाई देती है। शेक्सपियर्स हेड, अब क्लासरूम में क्या है, डोनेशंस, डोनेशंस कहते हैं गिफ्ट गिवन बाय द पीपल, गिफ्ट्स गिवन बाय द पीपल, गिवन बाय द पीपल, लोगों ने कुछ कुछ गिफ्ट दिए हैं क्लास में, डोनेट किए हैं फ्री में, उसको कहा जाता है डिनर। चैरिटी में जो चीजें दान दी जाती हैं उसे कहते हैं डोनेशंस। तो कुछ पिक्चर्स पेंटिंग्स जो है वो कुछ लोगों ने चैरिटी में स्कूल को दान दी गई है एंड दीज पिक्चर्स आर हंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की दीवारों पर ये चित्र लटके हुए हैं और एक एक करके वो वर्णन करते जा रहा है कि देयर इज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का एक चित्र वहां पे टंगा है। तो शेक्सपियर, हु इज शेक्सपियर? शेक्सपियर इज अ ग्रेट is the greatest dramatist, novelist, poet, writer of English literature, लिटरेरी फिगर है जो एक बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही विद्वान लर्नेड व्यक्ति के रूप में जिसकी गणना की जाती है, जिनको पहचाना जाता है, जाना जाता है। शेक्सपियर प्रतीक है ज्ञान का, शिक्षा का, नॉलेज का, और लेकिन इन बच्चों के लिए ये शेक्सपियर किसी काम का नहीं है, because these children are deprived children, they don't get the basic amenities of life. For example, they don't get proper food. इन बच्चों के लिए भरपेट खाना ही नहीं है, तो उनके लिए शेक्सपियर का क्या मतलब? Who is Shakespeare? They don't know. शेक्सपियर कौन है, उसका क्या महत्व है हम संसार में, इस दुनिया में, इस शिक्षा के क्षेत्र में शेक्सपियर क्या स्थान रखता है? शेक्सपियर इज यूजलेस, वर्थलेस, मीनिंगलेस फॉर देम। उसी तरह से क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, एक प्रातः काल का एक चित्र भी वहां पर लगा है, विच इज देयर इज अ स्काई विच इज क्लाउडलेस, कोई बादल नहीं है, एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन स्काई दिखाई दे रहा है अर्ली मॉर्निंग का। अर्ली मॉर्निंग सिग्निफाइज द होप एंड पॉजिटिविटी इन लाइफ, जो सुबह सुबह का समय है वो एक आशा और सकारात्मकता को दर्शाता है, वो चित्र वहां पे लगा है। कोई बादल नहीं है माने क्लियर स्काई है, यानी सब कुछ बिल्कुल साफ है, भविष्य जो है बहुत ज्यादा उज्जवल है, उसका प्रतीक है। लेकिन ये चित्र भी इन बच्चों के किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनका जीवन उतना क्लियर नहीं है, उतना साफ नहीं है, उतना आशा नहीं भरी उनके जीवन में, उनका जीवन निराशा से भरा है, इसलिए ये चित्र भी उनके लिए किसी काम का नहीं है। दिस इज ऑल्सो वर्थलेस फॉर देम। Civilized of writing all cities. There are other pictures also which have the domes. Pictures with domes. बड़ी बड़ी मीनारें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े गुंबद बने हैं। Domes symbolize the civilization. Domes जो है वो प्रतीक है सभ्यता का, विकास का, प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता का, अमीरी का, और कितना ज्यादा आर्किटेक्चरल रूप में व्यक्ति ने प्रगति कर ली है टेक्नोलॉजिकली, इसका प्रतीक है। बट इन बच्चों के लिए ये पिक्चर भी किसी काम की नहीं है। देयर इज अनदर पिक्चर ऑफ टायरोलीज वैली, एक टायरोलीज वैली है ऑस्ट्रिया में। दिस वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स विच आर बेल्ड शेप्ड, बेल के आकार के, घंटी के आकार के फूलों से भरी हुई घाटियां हैं। दिस टायरोलीज वैली इज फेमस फॉर इट्स रिवर्स, माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल कलरफुल flowers. It is the valley is vibrant in colors, it is very beautiful, people go there, people visit there, it is a very famous tourist place. बहुत ही खूबसूरत घाटी है ये वैली ऑस्ट्रिया की, टायरोलीज वैली, जो कि फूलों से भरी हुई है, फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है, जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, खूबसूरत नदियां हैं, पहाड़ है, तालाब है, सुंदर सुंदर झरने हैं। तो लेकिन ये खूबसूरती जो है प्रकृति की, ये वाला चित्र भी इन बच्चों के जीवन से एकदम कंट्रास्ट दिखाता है। ये चित्र भी इनका किसी काम का नहीं है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इन इट्स वर्ल्ड, एंड देयर इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ वर्ल्ड मैप, एक विश्व के मानचित्र का चित्र भी वहां पर लटका हुआ है, विश्व का मानचित्र भी वहां पर दीवार पर लटका है। And this map of the world
is designed, is created by the people who are the powerful people, who are dictators of the world, जो विश्व के जो तानाशाह हैं, people who are powerful, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो rich people हैं, जो पूरे विश्व पर जिनका राज है। ऐसा लगता है कि ये जो वर्ल्ड का मैप है उन्हीं लोगों की इच्छा के अनुसार इसको बनाया गया है, और ये वर्ल्ड मैप जो है वर्ल्ड को उसको अवार्ड दे रहा है, यानी पूरे विश्व को, पूरे विश्व को दिखा रहा है कि देखो ये तुम हो, ये तुम्हारा वर्ल्ड है। और उस वर्ल्ड में, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए ये जो वर्ल्ड मैप है, जो विश्व का मानचित्र है, ये उनका मानचित्र नहीं है। इट मीन्स दैट देयर इज नो प्लेस फॉर दीज स्लम चिल्ड्रन इन दिस मैप। इस अमीरों के संसार में, इस स्लम एरिया में रहने वाले गरीब बच्चों का कोई भी स्थान नहीं है। ये कहाँ रहते हैं वो इस मैप में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, यानी कि ये जो बच्चे हैं वो समाज से एकदम निष्कासित हैं, एकदम उपेक्षित हैं, कोई इनके बारे में नहीं सोचता है। तो इस मैप में ये जो मैप है, ये मैप भी बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है। These windows their world, where all their future painted with fog. अब बच्चों का वर्ल्ड कौन है, उनका संसार कौन है? ये खिड़कियां ही, जो क्लासरूम की जो खिड़कियां हैं, ये ही उनका संसार है। These windows their world, ये खिड़कियां ही उनका संसार है। लेकिन उनका जो ये संसार है, इट इज पेंटेड विद फॉग। फॉग कहते हैं कोहरा। कोहरा जो होता है, धुंधला होता है, जो मिस्ट होता है, जो कुहासा छाता है, इट इज whenever there is fog, we can't see through this fog to the other side. हम इस फॉग से दूसरी साइड को नहीं देख सकते हैं क्लियरली। हमको दूसरी तरफ धुंधला दिखाई देता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है। इन द सेम वे, इन बच्चों की जो खिड़कियां हैं वो फॉग से भरी हुई हैं, यानी खिड़की से बाहर जब भी वो देखते हैं तो वहां पर कोहरा छाया हुआ है। मतलब दे कांट सी एनीथिंग क्लियरली और प्रॉपरली थ्रू दीज विंडोज। इन खिड़कियों से ये बच्चे बाहर की तरफ कुछ भी साफ नहीं देख सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका जो फ्यूचर है, इट इज पेंटेड विथ फॉग। उनके भविष्य पर कुहासा छा गया है, उनके भविष्य जो है वो ग्लूमी हो गया है, अंधेरा छा गया है, धुंधलापन है। देयर फ्यूचर इज नॉट क्लियर, देयर फ्यूचर इज नॉट सर्टेन। उनका भविष्य निश्चित नहीं है। व्हाट विल हैपन टू देम, इट इज अनसर्टेन। उनके साथ अगले पल क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, कैसे वो अपना जीवन काटेंगे, जिएंगे, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि जो खिड़कियां है, उनका जो भविष्य है वो फॉग से भरा हुआ है। A narrow street sealed in with the lead sky. They live in the houses which are situated in narrow street. वो ऐसे घरों में रहते हैं, वो ऐसे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा सकरी गलियां हैं। उनकी गलियां बहुत सकरी है, और ऐसा लगता है कि उन सकरी गलियों से जो आकाश दिखाई देता है वो पूरा लेड स्काई बन गया है। स्काई कैसा होता है? स्काई होता है क्लियर, ब्लू, नीला, साफ, स्वच्छ। लेकिन इन बच्चों का जो स्काई है वो लेड स्काई। लेड कहते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ मेटल। सीसा एक प्रकार का धातु होता है विच इज ग्रे ब्लूइश कलर, जो ग्रे कलर का होता है, जो ग्लूमी कलर का होता है, थोड़ा काला रंग लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि अपने घरों की गलियों से जब वो आकाश को देखते हैं तो वो आकाश जो है वो लेड स्काई दिखाई देता है, ग्रे कलर का दिखाई देता है। मीन्स द स्काई विच दे सी फ्रॉम देयर नैरो स्ट्रीट्स, इट इज पोल्यूटेड। वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया स्काई, कुछ भी साफ साफ वहां से भी नहीं दिखाई देता। मीन्स देयर इज नो एनी होप, कोई भी आशा नहीं है, कोई भी आशा की किरण वहां पर दिखाई नहीं देती है कि उनका भविष्य कैसा होगा। यानी खिड़कियां में भी कुहासा छा रखा है, उनके भविष्य की खिड़कियां भी बंद है, उनके भविष्य का जो आकाश है वो भी काला पड़ गया है, वो उसमें भी अंधेरा छा गया है, वो भी क्लियर नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वॉक्स। ये जो बच्चे हैं वो रिवर्स, ब्यूटीफुल जो नदियां होती हैं, जो केप्स होते हैं, केप्स कहते हैं ये अंतरीप जो होते हैं, केप्स कहते हैं प्लेसेस ऑफ हाईलैंड्स स्टिकिंग आउट इनटू द सी, जो
अंतरीप होते हैं, जो खूबसूरत दृश्य होते हैं सागर के किनारे, यानी विच आर द ब्यूटी ऑफ नेचर, नदियां जो प्रकृति की सुंदरता है, केव्स जो प्रकृति की सुंदरता है, अंतरीप जो प्रकृति की सुंदरता है, these children are very far from these things, means they are unable to enjoy the beauties of the nature. Stars of birds, it also means the education, वो किसी भी प्रकार का शिक्षा से वंचित हैं. Their world is far away from rivers, caves and stars. The children crave for openness. They want to go into the nature. They want to enjoy the beauties of nature. बच्चे जो हैं वो खुले में जाना चाहते हैं, वो प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं. They also enjoy the beauties of nature, bounties of nature. They want to get rid of narrow and crowded lanes. वो अपनी भीड़ बड़ी गलियों से और सकरी गलियों से बाहर निकलना चाहते हैं. So the poet doesn't see any future for the slum children. Their future is not bright. Their future is foggy. It is uncertain. There is not any ray of hope for these children. कोई भी आशा इनके जीवन में दिखाई नहीं देती है. Let's move to the next stanza. Stanza 3. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal. Previous stanza we studied that Shakespeare is a bad example for these children. Shakespeare जो है उनके लिए बहुत ही बुरा खराब उदाहरण है. Surely means certainly. Certainly Shakespeare, who is the literary figure, who is the very famous literary figure of the world, is very bad example for these children. The picture of Shakespeare should not be hung on the walls of the school. शेक्सपियर का चित्र जो है वहां टंगा नहीं होना चाहिए. ये उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है, वीकेंड एग्जाम्पल है. द मैप अ बैड एग्जाम्पल. शेक्सपियर इज वेरी मीन टू देम, विकेड, दुष्ट. विद शिप्स, सन एंड लव. सन सिंबलाइजेस द नॉलेज एंड वार्म. वार्म तो यानी गर्माहट और नॉलेज, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है सन. शिप रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट को एंड ब्यूटी को, एंड लव रिप्रेजेंट करता है काइंडनेस को. तो ये जितनी भी जीवन की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो ब्यूटी है ऑफ नेचर है, नॉलेज है और काइंडनेस है, ये सब इन चीजों, इन बच्चों को नहीं मिली है. तो ऑल दीज थिंग्स मेक देम ग्रीडी. ये सारी चीजें बच्चों को लालची बनाती हैं. एंड दे वांट टू हैव इट, दे वांट टू गेट ऑल दोज थिंग्स. वो सब इन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं. दे वांट टू मूव, they want to get knowledge, they want to get kindness, sympathy and love, and when they don't get all these things, they try to steal them. और जब ये सारी चीजें उनको आसानी से नहीं मिलती हैं, तब वो उनको चोरी करना चाहते हैं. and they become the criminals, और तब वो अपराधी बन जाते हैं and harm the society, और समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. जो लाइव्स है, जो जीवन है, बहुत ही सीक्रेटली, स्लाइली माने होता है सीक्रेटली. तो उनके जो क्रैम्ड होल्स है, जो उनके सकरी गलियां हैं, जो उनके छोटे छोटे घर हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियां जो है, देयर इज नो एंड टू दिस काइंड ऑफ लाइफ. इट स्टार्ट्स फ्रॉम फॉग एंड एंड्स विद नाइट. धुंधलेपन से स्टार्ट होते धीरे धीरे उनका जीवन जो है पूरी तरह से अंधकार में हो जाता है. ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन. These children are sitting on the slag heap. Slag कहते हैं ट्रेश को, गार्बेज को. हीप कहते हैं पाइल. पाइल जो होती है, जो ढेर होता है. It seems that they are sitting on the heaps of the garbage. ऐसा लगता है कि वो कचरे के ढेर में बैठे हुए हैं, यानी चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई देती है. कुछ भी सर्टेनिटी, कुछ भी पॉजिटिविटी उनके जीवन में दिखाई नहीं देती है. Where skins peeped through by bones and spectacles of steel, because they are malnourished, because they are undernourished, they don't get proper food, they don't get enough food, sufficient food for themselves. That's why they are very lean and thin. They have become skeleton. वो एक कंकाल की तरह हो गए हैं और उनकी जो हड्डियां हैं वो उनकी स्किन से झांकती भी दिखाई देती है. पीप माने टू लुक आउटसाइड. तो उनकी हड्डियां जो हैं बाहर दिखाई देती हैं, because they are very lean and thin. They are suffering from many health problems,
एंड दे आर वेयरिंग स्टील ग्लासेस. स्पेक्टिकल्स माने होता है ग्लासेस, चश्मा. तो वो स्टील के फ्रेम वाले, स्टील इज अ मेटल विच इज चीप, यानी उन्होंने जो चश्मे पहने हुए हैं वो स्टील के फ्रेम के बने हुए हैं. और उसमें भी जो उनका ग्लास लगा है वो मैंडेड ग्लासेस है, मीन्स रिपेयर्ड ग्लास है. दे आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स of steel frame with mended with repaired glasses, and these glasses look like bottle bits of stone. जैसे कि कांच पर किसी पत्थर को, किसी कांच की बोतल को मार के अगर तोड़ दिया जाए तो उसके जो बिट्स है, उसके जो पीसेस हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं, वैसे ही उनके चश्मों के ग्लासेस भी दिखाई देते हैं. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. उनका जितना भी समय है, जितना भी स्पेस है उस एरिया में, उस स्लम एरिया में, it is full of fog, it is uncertain, it is full of uncertainty, it is gloomy, it is bleak, it is dark. अंधेरा छाया हुआ है, ग्लूमी है, धुंधलापन है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है. और टाइम जो बिताते हैं, उनका पूरा समय इस फॉगी स्लम में व्यतीत होता है. पूरा जिंदगी उनका अनिश्चितता से भरी है, पूरी जिंदगी उनकी आशाहीन है. किसी भी प्रकार की रे ऑफ होप, आशा की किरण हमको दिखाई नहीं देती है. सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम. डूम कहते हैं हेल. दे लिव इन अ वेरी पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशंस. इट सीम्स दैट दे लिव इन हेल्स. ऐसा लगता है जैसे कि वो नर्क में रह रहे हैं. और ये जो उनका जो स्लम एरिया है वो इन रिच पीपल के जो मैप्स हैं उसमें एक ब्लॉट के समान है. ब्लॉट कहते हैं धब्बा, कलंक, कलंक के समान है. माने जो अमीरों ने जो ये वर्ल्ड मैप बनाया है, जो नक्शा बनाया है, उनमें इनकी झुग्गी झोपड़ियां, बस्तियां जो है वो एक नर्क है, नर्क की तरह दिखाई देती हैं. इतना उनका पैथेटिक और मिजरेबल कंडीशन है. ये जो स्लम एरिया है, ये झुग्गी झोपड़ियां, बस्तियां हैं, ये जीते जी नर्क के समान है. These slum areas are like blots on the world map of the rich people. Let's move to the last stanza and stanza 4. Unless governor, inspector and visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break open till they break the town. Unless means if not. Unless means if not, yadi nahi. In this stanza, the poet appeals and requests to the people who are the caretaker of these children, who are the rich people of the society, who are the representative of the society, people who hold the high position in the society. Just like governor who makes the policies, जो नीतियां बनाते हैं, इंस्पेक्टर जो निरीक्षण करते हैं, who visits the schools, स्कूल में आकर के बीच बीच में जो निरीक्षण करते हैं, ये जितने भी लोग हैं, who are the trustees of these children, who are the caretaker of these children, who are responsible members of the society, उन लोगों से पोएट जो है वो अपील कर रहा है कि प्लीज look, please pay a little attention towards the condition of these children. Please improve the condition of these children. कृपया इन बच्चों की स्थितियों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए और इनकी स्थितियों को भी सुधारें. This may become their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break. वो कहते हैं please make this map their windows. ये जो वर्ल्ड का मैप है उसको इन बच्चों की विंडो बना दीजिए, इनकी खिड़कियां बना दीजिए. इस वर्ल्ड मैप में इनकी भी खिड़कियां होनी चाहिए. There should be the windows for these slum children. And what does it mean? ये विंडोज का मतलब यहाँ पे क्या है? विंडो मीन्स अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर. प्लीज प्रोवाइड द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू दीज चिल्ड्रन ऑल्सो. इन बच्चों को भी कुछ अवसर दिया जाए. टू लिव, टू राइट, टू एजुकेट. जो उनका राइट टू एजुकेशन है, जो उनका जीवने का अधिकार है, जो उनका पोषण का अधिकार है, वो इनको प्रदान किया जाए. उनका राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू न्यूट्रिशन, ये सारे अधिकार इनको दिए जाएंगे. जब ये सारे अधिकार उनको दिए जाएंगे
तभी ये मैप जो है इनका खिड़की बनेगा, तभी ये बच्चे जो है इस मैप में अपना दुनिया बसा सकते हैं, तभी ये इस संसार के बच्चे कहलाएंगे। तो वो कहना चाहते हैं कि इस विश्व के मानचित्र में इन बच्चों को भी कुछ अवसर प्रदान किया जाए, इस संसार में ये भी बच्चे हैं, इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और इनके जीवन को भी संवारा जाए, इनके भविष्य को भी संवारा जाए, जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो, सिक्योर हो और उज्जवल। एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियां हैं इनके घरों की, इनके क्लासेस की, ये खिड़कियां जो है इनके जीवन पर कैटाकॉम्स की तरह छा गई हैं, बंद कर दिया उनके जीवन। कैटाकॉम्स कहता है, कैटाकॉम मीन्स अंडरग्राउंड ग्रेव्स जो होती है, अंडरग्राउंड ग्रेव्स, ग्रेव्स कहते हैं कब्र को, जो अंडरग्राउंड जो टनल होती है, सुरंगें होती हैं, जो कब्र होती हैं, जिनको कब्रों को ऊपर से बंद कर दिया जाता है और फिर उसमें से निकलने का रास्ता नहीं होता है। उसी तरह से ये जो खिड़कियां हैं, जो फॉगी विंडोज है, जो लेड स्काई है, जो इनके जीवन पर कैटाकॉम्स की तरह छा गई हैं, जिन्होंने उसके भविष्य को बंद कर दिया है, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्लीज इन खिड़कियों को तोड़ दीजिए, ब्रेक ओ ब्रेक, इन खिड़कियों को तोड़िए जिससे कि वो बाहर निकल सके, सो दैट दे कैन come into the nature, so they can breathe in the open air, they can enjoy the beauty of life, they can enjoy everything whatever there in life like the rich people। ये खिड़कियों को खोल दीजिए, उनकी तोड़ दीजिए उनको, जिससे कि वो बाहर आ सके, till they break the town, इससे पहले कि वो शहर को तोड़ दे, इससे पहले कि वो क्रिमिनल बन जाए, इससे पहले कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स बन जाए। Please provide them proper opportunity. Please provide them proper, please improve their conditions. Please take care of these children and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History theirs, whose language is the sun. And show the children to green field. Please break the windows and bring these children in the nature, in the green. Green here means nature. हरियाली जो है, प्रकृति की जो हरियाली है, उन हरे भरे खेतों के बीच में इन बच्चों को लाए, उनको भी इस खुली हवा में सांस लेने दे, उनको भी प्रकृति के सुंदर सुंदर नजारों का आनंद लेने दे। प्लीज प्रोवाइड देम बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, उनको जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन की आवश्यकता, उनकी शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता, जीने की आवश्यकता। When their tummy is full of food, when their tummy is full, when there is clothes on their bodies, when they live in beautiful houses, जब उनको रहने के लिए अच्छा घर होगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होंगे, खाने के लिए उनका पेट भरा होगा, तब वो बच्चे जो हैं वो भी अमीरों के बच्चे की तरह इस प्रकृति के सुंदर सुंदर नजारों का आनंद ले पाएंगे। तो कृपया उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू द बुक्स। इनटू द बुक्स माने नॉलेज, शिक्षा, एजुकेशन। प्लीज प्रोवाइड देम एजुकेशन, जिससे कि उनकी जो जीव है वो भी उन पेजेस में, उस बुक की किताबों में, उसके जो व्हाइट पेजेस हैं, जो पन्ने हैं, उनमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ सके, बोल सके, प्रोनाउंस कर सके, वो भी शिक्षित हो सके। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जो प्रकृति ग्रीन लीव्स है यानी प्रकृति के जो नजारे हैं, हरियाली है, वो उनके लिए खुल जाए। एंड ग्रीव लीव्स ओपन, और प्रकृति के बीच में जाने को उनको अवसर मिले। History theirs, whose language is the sun. And this is the most important line of the poem. History माने इतिहास, and the sun. Sun symbolizes the glory, यश, knowledge, ज्ञान, authority, अधिकार, warmth, गर्माहट। तो ज्ञान का प्रतीक है सूर्य, यश का प्रतीक है सूर्य, और अधिकार का प्रतीक है सूर्य। तो जब जिस बच्चे को, जो शिक्षित होगा, जिसको पूरी तरह से ज्ञान होगा, उसका यश फैलेगा, उसको अधिकारों की प्राप्ति होगी, वही लोग जो होते हैं वो इतिहास बनाते हैं, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। माने जो लोग शिक्षित होंगे, जो लोगों को प्रॉपर अथॉरिटी होगी, पूरे अधिकार होंगे, वही लोग इतिहास बनाते हैं, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। सो कवि यही कहना चाहते हैं कि उनकी जो डर्टी सराउंडिंग्स है, उनकी जो अनहाइजीनिक कंडीशंस है, उन्होंने इन बच्चों की प्रोग्रेस को, इनके डेवलपमेंट को रोक दिया है। उन्हें भी नीले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर दौड़ने दे,
नीले समुद्र के किनारे. Here the poem ends. I hope you enjoyed the poem, like the poem. Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.